जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। So now this is your cycle of Chatur Yug. टोटल 12,000 years होता है, जिसमें एक्चुअल युग का टाइम 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 which is 10,000 years. और जो संध्या पीरियड है, where you the period decays and goes into the next संध्या period of the next yug, and then the change occurs. It is difficult for you to shift from one particular yug immediately to the other yug. So there is a sandhya of the previous yug and the sandhya of the next yug that you have, and then you come into that yug proper, and then it carries on. So 800 दोनों मिला के, आगे पीछे मिला के 800, 600, 400, 200, which works out to 2,000, and that is how it is 12,000 years, which is 4.32 million years. एक चतुर्युग. Okay, and one a Manu, एक after every 71 महायुग. ब्रह्मा जी, इसको समझाने के लिए बताता हूं, 4.32 मिलियन ईयर्स. ब्रह्मा जी के इस साइकिल में, ब्रह्मा जी की लाइफ साइकिल इज सेट टू बी 100 years एज पर स्क्रिप्चर्स. उनका एक दिन जो होता है, जिसको कल्प भी कहते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू हिज नाइट ऑल्सो, एक कल्प 1000 इस तरह के महायुग चतुर्युग के साइकिल को देखता है. So wait. एक, oh man, that's See, one Chaturyug is 4.32 million years. ठीक है. Multiplied by 1,000 times, that is one day of Brahma. वो एक कल्प है. 4.32 million into 1,000, which is 4.32 billion years. And when you read the West dating and study of our Earth, they say the life of Earth is 4.2 billion years. Yeah, 4.23 right? billion years. And we are telling life of the complete Srishti is 4.32 billion years. जो पता नहीं कितने लाखों साल पहले का लिखा हुआ है. That is one day of Brahma. Then there is nothingness for 4.32 billion years, and then the next day of Brahma starts. इस तरह से 360 दिन में ब्रह्मा जी का एक साल होता है, और ब्रह्मा जी का इस सृष्टि के रचयिता जो है 100 साल है. और उस 100 साल के बाद फिर 100 साल कुछ नहीं, और उसके बाद दोबारा से ये सृष्टि फिर से शुरू होता है. और हर एक दिन में वो 14 मनु देखते हैं. हर एक दिन में 1000 साइकिल के अंदर 14 मनु आता है. एक मनु 71, ये जो साइकिल होता है, एक साइकिल 4.32 मिलियन ईयर्स, 71 such cycles is after one manu, with one manu. Okay. So 14 into 71 is 994 God years, and those 6 God years are covered in the Sandhya period from one Manu to the next.
That is how this whole thing is. And in the current cycle, I will tell you where we are, how we are. We are in the 7th Manvantra. Next में जाना. Now I will relate scientific. अगर एक मनु है, he is supposed to be the lawgiver for all mankind. It is much easier when you have in plate tectonics, there is a concept of a supercontinent. Bulk of the landmass of the earth that is there today is covered, joined together. अगर सारे joined together हैं, तो it is much easier for the Manu to give his laws to the entire mankind. और हम कहते हैं अभी हम 7वें मनु में हैं. भाई साहब, plate tectonics, I have given you the link. There have been 7 supercontinents till date. Because of the movement of the earth and the centripetal force, the land masses break apart and join back again, break apart and join back again. Every 300 to 350 million years, one supercontinent is formed. I will give you the names of the super. हाँ, ये आपको जितने भी लैंड मास है, अभी जैसे अमेरिकाज है, यूरेशिया है, अफ्रीका है, ये सारा ये मूवमेंट बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग रोटेशन ऑफ द अर्थ and the earth rotating around the sun, and all this is moving. Your Milky Way is not static, it is moving at million miles per hour. ये सारा movement creates your centripetal force and centrifugal force, so your landmass keeps breaking and joining back. अभी भी कह रहे हैं ना, Africa, eastern coast of Africa is breaking apart. It is because of this, and then they join back again. And every 300 to 350 million years, you get a supercontinent. Bulk of the landmass is joined together. Ideally, Manu comes when the supercontinent is formed. And as per our Vedic timelines, Manu also comes around the same time. 300 to 300 million years ago. Am I coincident है? नहीं. This is the second coincidence in the show. Yes. अभी तो आप next सिंपल लैंग्वेज में सर एक बार जरा ये, क्योंकि काफी आई कैन सी सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ. मैं जो बोल रहा हूँ नहीं वो स्पिन, धरती क्योंकि स्पिन होता है, तो धरती के ऊपर जितने भी लैंड मास है, सी रिमेम्बर 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर, 30% ओनली इज द लैंड मास. अब जब ये 30% लैंड मास है, बल्क ऑफ द लैंड मास फिर एक साथ जुड़ जाते हैं, और जब ये जुड़ जाते हैं तो इसको प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर इसको कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट. और हर 300 से 350 मिलियन ईयर्स में ये सुपर कॉन्टिनेंट बनता है. और अभी तक 7 सुपर कॉन्टिनेंट बन चुके हैं इस धरती पे. और हमारा भी कहना है कि मनु जो है 7वां मनु है. और अगर सुपर कॉन्टिनेंट के साथ ही मनु आएगा, क्योंकि अगर लॉ गिवर है पूरे संसार के लिए, तो सुपर कॉन्टिनेंट में लॉ गिविंग तो आसान हो जाता है ना, सब कनेक्टेड है. यू कैन कंट्रोल द एंटायर लॉट ऑफ पीपल एंड बी एबल टू टीच देम हाउ टू लिव. अदरवाइज यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन टेक्टोनिक प्लेट ओनली. और हमारे साइकिल में भी मनु जो है, जो 71 साइकिल के बाद मनु देखता है, इट कम्स टू 300 to 350 मिलियन ईयर्स. 4.32 into 71, एक चतुर्युग 4.32 मिलियन ईयर्स होता, मल्टीप्लाइड बाय 71 3000 मिलियन ईयर्स के आसपास आ जाता है. बिटवीन 300 to 350 मिलियन इफ यू यूज टेक दी संध्या, आपका एक मनु आता है. मतलब जब जब सुपर कॉन्टिनेंट बनता है, तब तब आपका मनु आता है. और इमेजिन जब सुपर कॉन्टिनेंट आ रहा होगा, इकट्ठे हो रहे होंगे, किस तरह का प्रलय मचा होगा जुड़ने के टाइम.
तो ये और हर 7 बारी इस तरह बना से है, 7 बारी टूटा है, 7 बारी मतलब या अभी टूटा है, और अभी कह रहे हैं कि अभी कितना मिलियन ईयर्स, अभी बताऊंगा मैं कितना हो चुका है टूटने के बाद। और अब वी हैव अबाउट 100-150 मिलियन ईयर्स फॉर द नेक्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट टू फॉर्म। तो अभी आप एक चीज देखिए, हमारे जो छोटे भाई हैं वेस्ट में सॉरी, जोक प्रॉब्ली अ बैड वन, बट ये लोग तो सर ये जो लास्ट मूवमेंट की बात करते हैं, ये तो 7 की तो इनमें तो वो है ही नहीं। ये केवल अपने इसमें लिखा हुआ है भाई। अमेजिंग, अमेजिंग। ये एंड दीज हैव टेकन आउट फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स व्हिच आई हैव रेड, एंड द प्लेट टेक्टोनिक्स व्हिच आई यूज्ड टू रीड। वो क्या मूवमेंट होता है अर्थ का, कैसे, कहाँ, क्या। And the next, when we go, I will show you the names of the 7 and correlate the current cycle के मनूस के नाम. Next. जी। Now, ये दोनों लिखे हुए. वाल्बरा was the first स्वयंभू मनु. मत्स्य अवतार में बताते हैं ना. So he was स्वयंभू मनु. King क्या था? सर्वत्र. सत्यव्रत. King सत्यव्रत was selected. He was the Manu. उसको वेद सिखाया गया था मत्स्यावतार में, and he was considered स्वयंभू मनु. Next is Ur स्वरोचिष, केनोरलान उत्तमा, कोलंबिया या नूना, तापस या तमस, रोदीना, रैवत, पनोटिया, चक्षुषा, और लास्ट वो स्पेंजियन, एंड वी हैव वैवस्वत मनु. जो अभी हमारा चल रहा है, लैटिन नेम की they have given those names, उनका लैटिन और वगैरह से निकाल के लेते हैं. Like Rodina in Russia, Rodina, Maya Rodina, Russia is my motherland, my country. That's exactly But why I Rodina asked. is one of the names of the supercontinent. Pangaea, Vaivasvat. Russian language is very close to Sanskrit, huh? क्योंकि Very आपने close दो to नाम Sanskrit. बोले, एक तो रोडीना बोला और दूसरा कोलंबिया बोला. कोलंबिया इज अ वेरी ओल्ड नेम. Yeah. बहुत पुराना तो नाम है. ये अपना 7वां वैवस्वत है. Do you know what is the Russian word for inflammable? अग्नि उपासना. अग्नि के उपासना में क्या डालते हो? घी डालते हो. घी से क्या लगता है? आग उठता है. That is the Russian name for inflammable. Russian language is very close to Sanskrit, where you have conjugation and declamation of all the words. Very few exceptions. Sanskrit में तो कोई exceptions नहीं है. Russian has very limited. And the third language, second language which is close to Sanskrit after Russian is German. बाकी are not that close. Okay. Next. Now, so 7 continents as per our science, 7th Manu as per our scriptures. So it is giving quite a lot of veracity for our scriptures, and there are many more. चलते चलते आपको बताते जाऊंगा मैं. ठीक है. अगले में अभी आप देखते हैं भारत के बारे में, अभी के भारत के बारे में, और उसको रिलेट करते हुए चलेंगे. तो ये याद रख लेना, 7th मनवंत्र है, नाम है वैवस्वत. आगे चल के आपको बताऊंगा कि हम इस समय इस पूरे सृष्टि के चतुर्युग का जो कुछ हो रहा है, ब्रह्मा जी के किस समय आज हम हैं. Where in this entire huge timeline of Brahma ji is the current situation located? So now, जय हिंद. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से.
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।